Now we have discussed negative binomial distribution. Now this is one thing very important. We will discuss what is a Poisson distribution. Now Poisson distribution is very important for people who are dealing in queuing. Queuing means क्यू जहाँ लगता है और जहाँ ऑपरेशंस लगता है या जहाँ पे ट्रैफिक इंजीनियरिंग होती है. सो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन. क्योंकि देखिए नॉर्मल सारे बाइनोमियल ट्रायल तो होते नहीं, पहली बात. दैट्स वन थिंग. देयरफॉर ऑल बाइनोमियल ट्रायल बेस्ड और बर्नौली ट्रायल based distribution are not useful, and not every distribution is normal. Why? What is normal actually? Normal is over a large sample size, this there is a shape to be followed by the distribution, by the people of frequency plot. Okay. Now here queuing में what is more important? It is based on arrival, average rate of something happening, and what is the event happening now, something like that. So it is a event based thing. Okay. And आप अगर यहाँ देखें distribution discrete में Poisson आता है, तो Poisson is a discrete distribution because there is no one event or 1.2 event. There is one event, two event, three events. So not 1.2, 1. There is no one event or 1.1 or 1.2, 1.3. So there is 1, 2, 3. So that is the difference between discrete and continuous. Okay, so please understand this first. That is why the distribution channel is there. Okay, distribution categorization of discrete and continuous is there. Now coming back to Poisson distribution. Now please understand. We all have understood factorial. K factorial is k into k minus 1 into k minus 2 dot 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 1. Now आप ध्यान से देखिएगा. If the probability of certain events k in a fixed interval time is given, ठीक है, हमें पता करनी है, provided the average rate is lambda. So जो average rate है events होने का, lambda is the rate and k is the number of events. इसको हम आगे डिस्कस करेंगे. जैसे हम कह रहे हैं 10 स्टूडेंट्स आते हैं क्लास के अंदर पर मिनट. ओके, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 3 स्टूडेंट्स विल बी देयर इन दैट मिनट. नाउ प्लीज अंडरस्टैंड बाय मैथमेटिकल लॉजिक, इफ यू अप्लाई कि भाई 10 आ जाते हैं एक में तो 3 आ ही जाएंगे, तो 60% 30% कर देते हैं, इनफैक्ट 100% कर देते हैं क्योंकि 3 तो आ ही जाएंगे. दैट इज द डिफरेंस हेयर. Poisson distribution assumes an average rate. Please understand, it's an average rate. Average का मतलब ही नहीं है ज़्यादा कम, कभी कुछ कभी कुछ. It's not a constant rate. Because it's an average rate and because we do not know the distribution exactly कि कैसे लोग आ रहे हैं, हमने average rate लिया है. तो Poisson distribution helps to model that. Model that मतलब explain the data as we have discussed earlier. Okay. So what is the concept? E minus to power lambda. What is E here? If what we are saying 10 students come in 1 minute. So what is the probability of getting 3 students in that 1 minute? इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? अब देखिए, अगर लॉजिक लगाया जाए तो भाई 10 आ ही जाते हैं, तो भाई 3 तो आ ही जाएंगे. So we will say it is more than 50 or something like that. Okay, but the point is that is not the case. Again, as I told you, now this thing E is 2.71. ठीक है, this is not that E जो हमने scientific calculation में use किया था, where we said 2.2 e to power 10. Now this E and this E are different. Okay, this is 2.2 into 10 to power 10. Okay, this is different. So first of all, E minus lambda.
अपॉन k फैक्टोरियल into I suppose lambda into power k, yeah, lambda into power k. So this is the distribution, or this is the probability at given lambda for wanted k. Lambda is the rate and k is the event. ठीक है. Now coming back, देखिए, now we will see this how it is applicable. So we will open our console. So we have set the lambda equal to 2. ओके, अब ये देखिए, अगर हमको ये निकालना है कि एक भी इवेंट ना हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो कैसे निकालेंगे? सी, 0 इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी अगर लैम्डा 2 भी है तो 0.3135 है, और अगर हमें 5 की प्रोबेबिलिटी चाहिए डी पॉइजन 5 लैम्डा. ओके, ये देखिए, आप सोच सकते हैं उसी यूनिट में 2 प्रोबेबिलिटी है, 5 की प्रोबेबिलिटी 0 से कम है. सो ये इंटरेस्टिंग चीज़ें होती हैं. ओके, अब इसको हम प्लॉट करने की कोशिश करते हैं. टीचिंग्स, डिस्ट्रीब्यूशंस, डिस्क्रीट, पॉइजन, प्रोबेबिलिटी प्लॉट. ओके, ठीक है. सी, दिस इज द प्लॉट. ओके, फॉर, देखिए आपको लग रहा था, अभी इसमें हम इसको रन अगेन करते हैं. इसमें लैम्डा कहाँ चेंज होता है, ये देखिए, हमने पैरामीटर्स डाले हुए मीन 1. ठीक है, अभी हम अपना 2 डाल के देख लेते हैं. ये देखिए, 2 डालने के बाद 5 होने की प्रोबेबिलिटी, समझ रहे हैं ना, एवरेज 2 पर मिनट है. उससे ज़्यादा आप अगर ढूंढ रहे हैं कि भैया 2 पर मिनट है, 5 पर मिनट की आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो ऑब्वियसली वो कम है एज कंपेयर टू, देखिए 2 और 1 की सबसे ज़्यादा है. तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की शेप चेंज होती रहती है. अब इसको हम फिर से देखते हैं. देखिए यहीं पर ये जो प्लॉटिंग है आप बार बार कर सकते हैं. ओके, आप कितना भी डाल सकते हैं. वो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में देख लेते हैं. ये वही, हाँ, देखिए ये मैंने को पहले बताया था इंटीग्रल होता है. सो ये देखिए 0 से 1, सो ये CDF है आपका, 2 क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी होती है. ओके, सो दिस विल बिकम 1. सो देखिए यहाँ पर एंड में बिल्कुल वो है. सो अगेन प्लीज प्ले हीड हेयर, द प्रोबेबिलिटी एट हाईएस्ट एट द पॉइंट. अभी इसको हम ऐसे देख लेते हैं. यहाँ पर जो हमने किया है इसको हम 2 करके देखते हैं. देखिएगा 0.27, यहाँ पे आप देखिए, ये देखिए 0.27. तो यही वो वैल्यू है. ओके, सो दिस इज व्हाट वी हैव टू डू. देखिए बोथ आर मैचिंग. सो दिस इज द पॉइजन ग्राफ्स लुक लाइक. नाउ अगर हम बाद में यहाँ पे प्रोबेबिलिटी जानना चाहते हैं तो डिस्क्रीट में जाके पॉइजन में सिर्फ प्रोबेबिलिटी लिखेंगे और क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी, किस वैल्यू की प्रोबेबिलिटी चाहिए, जैसे जो कमांड है ना, ये कमांड ही आ जाएगी. ये देखिए, समझ रहे हैं. तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग द फॉर्मूला यही आ जाएगा. ओके, ये देखिए सेम थिंग, मतलब जो मैंने कमांड बताई यहाँ से आ गया. सो दिस इज पॉइजन फॉर्म, पॉइजन थिंग. नाउ अब इसको कैसे करते हैं जब हम कॉपी पेन पे करते हैं, बिकॉज दिस क्वेश्चन कैन कम इन एग्जामिनेशन, मेनी एग्जामिनेशन इट डज कम. ठीक है, तो अगर हमारा ये इसका आंसर नहीं है, मैं आपको वैसे ही बता रहा हूँ. अगर ई हमारा 120 है, लैम्डा हमारा 120 है, और हम सोच रहे हैं कि 125 की कितनी प्रोबेबिलिटी है हमें वो पता करना है, तो एज यूजुअल ई टू पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा टू पावर के एंड के फैक्टोरियल. ठीक है,
अब ये देखिए ऐसे एग्जांपल्स होते हैं, अगर 2 पार्टिकल पर मिनट डीके कर रहे हैं तो 4 पार्टिकल 10 मिनट में डीके करेंगे, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। अब ध्यान से ये देखिएगा कि थोड़ा यहाँ पर हमको बताएंगे, क्वेश्चन जैसे हमने बोला कि 2 पार्टिकल पर मिनट है, अब हम पूछ रहे हैं 4 पार्टिकल 10 मिनट में आएंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे रेट का डिफरेंस है, तो यहाँ पर लैम्डा 2 नहीं होगा, यहाँ पर लैम्डा होगा 2 × 10, क्योंकि उसी यूनिट के अंदर प्रोबेबिलिटी उसी यूनिट के अंदर आएगा, तो यहाँ लैम्डा हो जाएगा 10 बिकॉज ऑफ दिस। ओके, सो लैम्डा इज इन दैट यूनिट एंड इन द यूनिट यू आर ट्राइंग टू सी द ऑब्जर्वेशन। अगर कहीं पर आता है 8 पेशेंट पर मिनट और हमको प्रोबेबिलिटी निकालनी है 2 × 30 सेकेंड, तो यहां पर लैम्डा हो जाएगा 4, क्योंकि उसी जिस यूनिट में हमको प्रोबेबिलिटी निकालनी है उसी यूनिट में लैम्डा होना चाहिए, ठीक है। ओके, सो अगेन सिमिलर थिंग, देखिए पर मिनट पर आवर वो यूनिट्स आपको चेंज करनी पड़ेंगी। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखिएगा, एक बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, अगर उस पर n उसका 1000 हो और उसका c जो हो वो हो, मतलब जो r है वो 2 या 3 हो, तो क्या बनेगा 100 CR p⁻r, r is 3, q minus q into n⁻r which is 997। अब आप ये कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो देयरफॉर वी आर सेइंग अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ n सिग्मा, व्हाट इज पाई हेयर, पाई हेयर इज द रेट ऑफ सक्सेस। देखिए पाई अप्रोचेस टू 0, अगेन ये क्वेश्चन जो हाइपोजेमेट्रिक में था कि स्मॉल n और कैपिटल n का रेशियो होता है, उसी तरह देखिए अगर 1000 चीज़ में से सक्सेस रेट है 2 आने का, तो 2/1000 इज नियरली टू 0, तो इसमें हम पॉइजन लगा सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज मैं आपसे कहूँ 1000 बाइंड ट्रायल हुए थे, 2 बार सक्सेस के चांसेस हैं, आप ये बताइए कि 2 सक्सेस की प्रोबेबिलिटी क्या, तो आप कहेंगे 100,000 C2, ठीक है, 2/1000 पावर। आपको मैं दिखा देता हूँ जो मैं कहना चाह रहा था कि अगर 1000 पार्टिक हैं, 2 की सक्सेस है, ठीक है, 2 सक्सेस होता है तो प्रोबेबिलिटी कितना हुआ 2/10⁻³ अब मैं अगर प्रोबोल लगाऊं बाइनोमियल, तो अगर 3 इवेंट का निकालना है तो 100 C3, दिस इज p⁻³ 1 - p 997। अब ये हाथ से कैलकुलेट करने से रहे हम लोग, आप बताइए इसको हाथ से तो नहीं कर, हाँ कंप्यूटर से हो जाएगा, ठीक है, कंप्यूटर से प्रॉब्लम नहीं है। सो एट दैट टाइम्स इट बिकम्स सिंपल है ना सर, देखिए ये क्या है, ये एक तरह से लैम्डा ही तो है, इतनी सक्सेस है, ठीक है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब जैसे ये क्वेश्चन है, ढंग से देखिए, एक बल्ब 500 में से डिफेक्टिव होता है, ठीक है, हमने 10,000 बल्ब लिए, कितने चांस है कि 10 डिफेक्टिव हों, तो व्हाट इज द क्वेश्चन हेयर, P दिया हुआ है यहाँ पर 1/500 5000, ठीक है। अब आपको बोल रहे हैं 1000, आप ये निकालिए 1000 C3 p⁻³ 1 - p 997, आप निकालिए तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ओके। सो इसीलिए इसको हम ऐसे कर लेंगे कि लैम्डा इज 500 यूनिट में 1, ठीक है। हमको चाहिए 10,000 यूनिट में, 10,000 यूनिट कितने डिफेक्ट है, तो 10,000 यूनिट में ये हो जाएगा 2,
तो लैम्डा इज 2 एंड वी आर फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ 3। बस आप वो फॉर्मूला लगा दीजिए, काम खत्म, दैट्स इट। बाइनोमियल ही है और आप देख सकते हैं ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन, ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्या है, दिस इज मतलब लास्ट डिस्ट्रीब्यूशन, बहुत ही सिंपल है कंसेप्चुअल, कि हाउ मेनी ट्रायल्स हैव टू बी डन टू गेट वन सक्सेस। लास्ट इवेंट सक्सेसफुल है तो बड़ा सिंपल है, लास्ट इवेंट सक्सेसफुल है, उससे सारे इवेंट पहले फेलियर हैं, तो अगर k टाइम्स k इवेंट्स हैं, ठीक है, सो 1 माइनस p टाइम्स k माइनस 1, इतनी टाइम फेल हुआ इवेंट, इनटू लास्ट टाइम p, दिस इज अ प्रोबेबिलिटी। ओके, इट्स वेरी सिंपल, बस आपको बता दिया, इसका नाम ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है। ओके, कितने ट्रायल चाहिए, सो ऑल दिस डिस्ट्रीब्यूशंस आर लिंक्ड टू ईच अदर, कंसेप्ट इज सिंपल प्रोबेबिलिटी जो हमने बात करी थी। ओके, नाउ दिस इज समथिंग मोर वी विल डिस्कस, दिस इज कॉल्ड इफेक्ट साइज। ये हमारा लास्ट टॉपिक है, जो इसमें हमारी मोटा मोटा स्टैट्स सिलेबस एंगल से खत्म हो जाता है। ओके, पावर ऑफ द टेस्ट। सो पावर ऑफ द टेस्ट एंड इफेक्ट साइज क्या होता है, हमने बात करी थी कि आपका वो जो था पी लेवल, पी वैल्यू, दैट टेल्स अस सिग्निफिकेंस। which is yes or no, but the effect size, that's something different, कि कितना भयंकर इफेक्ट है। भाई जैसे मैंने आज एक चीनी का दाना खाया, क्या ये मुझे ताकत देगा? हाँ, थियोरेटिकली यस, प्रैक्टिकली नो। सो उसको हम ना खाने के बराबर ही मान लेते हैं। इफेक्ट तो है लेकिन एक्चुअली नहीं है, बहुत माइन्यूस्क्यूल है। द साइज ऑफ इफेक्ट, द साइज ऑफ इफेक्ट, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस। ठीक है, अब इसमें क्या चीज है, देयर आर टू थिंग्स। आपने यहां भी देखा होगा, हम जब कर रहे थे इसमें कीवर्ड में, कि कितना सैंपल साइज है। इफेक्ट साइज डिपेंड ऑन द सैंपल और सैंपल साइज डिपेंड ऑन इफेक्ट। सैंपल साइज, इफेक्ट साइज और सैंपल साइज में लिंक होता है। ठीक है, सो दीज थिंग्स आर लिंक्ड। देयरफॉर अगर आप इसमें गए होंगे, ये सैंपल साइज टू एस्टिमेट वन प्रोपोर्शन, ये सैंपल साइज, ये जो सैंपल साइज है ये वहां से आ रहा है। ओके, तो इसमें अगर आप क्लिक करेंगे तो देखिए आपसे ये सब डिटेल मांगेगा। ठीक है, तो कितना सैंपल साइज होना चाहिए, दिस इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड टू कैलकुलेट एंड सो हम करेंगे नहीं। बेसिक फॉर्मूला आपको मैंने दे दिया है। ठीक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट साइज ये है, ये सैंपल साइज है और ये इफेक्ट साइज है, कि जिस तरह आर की वैल्यू होती है उसी तरह इफेक्ट साइज की वैल्यू होती है, और इफेक्ट साइज के बहुत सारे फैक्टर हैं। कोहेन डी, कोहेन डी इज द साइन ऑफ, इज मेजर ऑफ इफेक्ट साइज। In fact, one of the measure. देखिए स्टैट्स में क्या होता है ना, हर चीज़ वो नहीं है गॉस्पेल ट्रूथ कि कोहेन डी इज द ओनली थिंग या रिग्रेशन इज द ओनली थिंग, सो दैट इज अ डिफरेंट डिबेट, बट जनरली दिस इज व्हाट वी, ओके। देखिए, द इफेक्ट साइड इज नॉट अ मेजर ऑफ स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस बट रादर मेजर ऑफ प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस। वही मैंने कहा ना, प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस इज द है कि नहीं है, और
statistical significance is theoretical significance. A larger effect size is the difference is substantial and easier to detect with a given sample size and statistical power. वो इफेक्ट है, अब खाने से शक्ति तो मिलती है, ये सबको पता है, चीनी खाने से कार्बोहाइड्रेट मिलता है, लेकिन एक दाना खाने से क्या आपके पास ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो डिटेक्ट कर पाएंगे? सो द इफेक्ट, समझ रहे हैं ना? ओके अब उसको टेस्ट कैसे किया जाता है? जैसे ये हमारा डेटा है, हम अपने उससे कॉपी करते हैं, LSR इज द लाइब्रेरी, लेट मी शो व्हाट इज हैपनिंग हियर। ये हम टी टेस्ट का कर रहे हैं, ठीक है, फॉर 2 इंडिपेंडेंट सैंपल। देखिए टी टेस्ट का भी होता है, रिग्रेशन का जनरली बीटा होता है, ठीक है, तो अभी हम सिंपल से टी टेस्ट का ही रखेंगे, बिकॉज रिग्रेशन और बाकी सब में जो इफेक्ट साइज हैं, कोई कहता है R² इज द इफेक्ट साइज, कोई कहता है वैसे, ये है टी टेस्ट के लिए, ये टी टेस्ट के लिए। अब रिग्रेशन के लिए कोई कहेगा R² adjusted R², ओके, सो देयरफोर ये है, तो इसलिए हम जो कर रहे हैं वो उसके लिए करें, आपको दिखाते हैं। अब अपना डेटा पहले रीड करते हैं हम लोग, दिस एंड वी आर रीडिंग इट, import CSV फॉर्मेट, वी गो फॉर डाउनलोड्स, ISO डाउनलोड्स में ही था जी, school.csv, सबमिट, ठीक है। अब यही हमारी कमांड है। अब LSR लाइब्रेरी इसमें नहीं होगी, तो ये हम बातें करेंगे, इंस्टॉल डॉट पैकेजेस LSR इंस्टॉल डॉट पैकेजेस LSR। तो जैसे पहले बताया था, क्रैन मिरर होता है, ओके ये थोड़ा टाइम लेगा इंस्टॉल करने में, देखिए हो रहा है, ये जो माउस आया है, डोंट वरी इट्स फाइन। ओके इट्स हैज क्रैश। सो फ्रेंड्स वी विल शिफ्ट टू द सिस्टम और हम लोग दूसरे सिस्टम से काम करेंगे। आई विल शो यू अगेन। So right now I am sorting. We are done with the command. This is testing between two values. So this is the between sample, and this is simple sample test where we are comparing it with the average. Okay. Thank you very much, and we will continue.